Back on, ladies and gentlemen, with the showdown over the Ramcharitmanas that's only escalated. Now, on Sunday, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath spoke exclusively to the News 18 Group Editor-in-Chief Rahul Joshi, where he hit out at the opposition over the Ramcharitmanas controversy, saying that people of the state have always rejected divisive politics, calling it an attempt by the opposition to divert attention from development. Meanwhile, the Uttar Pradesh government has invoked the National Security Act against two suspects who allegedly burned copies of the Ramcharitmanas on the 29th of January in Lucknow. This comes after former minister in the Yogi cabinet and now Samajwadi Party leader Swami Prasad Maurya kicked up controversy by alleging that certain verses of the Ramcharitmanas insult Dalits and OBCs. Demanding a ban on the religious text, he also accused the Uttar Pradesh government of targeting him as he fights for the dignity of Dalits and OBCs. But what is the phrase that has raked up the controversy? Let's try and decode that. Sri Ramcharitmanas Sundarkand, chapter 58, Doha, and this is the third para. Now that's what it talks about, and I'm going to read it very clearly. That's the Doha which is there on the screen. I'm going to read it on my phone. It says, Prabhu bal kini mohi sikh dini, marjada puni tumri kini, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी. And I'm going to read the translation as per the Gita Press version of the Sri Ramcharitmanas. प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव, that is the inherent nature of everything, भी आपकी ही बनाई हुई है. That means everything has a swadharma. There is an inherent nature. And that particular jeev has to be true to that inherent nature. ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं. They all need to be nurtured, trained, coached, educated at all levels to be able to understand their nature. That's the whole idea of this entire Doha, which has been raked up for various reasons. But interestingly, ladies and gentlemen, as I bring in Professor Nachiketa Tiwari, academician, back with us, इस पर फिर थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे. Professor Nachiketa is a scientist and also someone who's deeply immersed in spiritual studies, but more importantly, he's a researcher too by habit. So, Professor Nachiketa Tiwari, a Ramcharitmanas where Goswami Tulsidas comes out and says that the message from Ram is that you do parhit. There is no bigger dharma than doing parhit, that is good for someone. And the biggest adharma is when you try and hurt somebody. Now, how can something which talks to you the deepest lessons of life and which took the message of Maryada Purushottam Ram to every doorstep in northern India or say north of the Vindhyas, how can this be corrupt? और उस वक्त तो जातियां होती ही नहीं थी. तो ये 5000 साल पहले का जो लॉजिक है, 7500 साल पहले का लॉजिक है, उसको आज 2023 में ये लॉजिक भिड़ाने वाले कौन है? आर दे द सेम मिल्क हु बिलीव दैट युधिष्ठिर प्रैक्टिस बुद्धिज्म? So I couldn't stop myself. I had to put that in. Please continue. ये जो पूरी चर्चा या तथाकथित चर्चा शुरू हो गई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये अनजाने में, मतलब बिना सोचे समझे, बिना जाने कुछ लोग इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ लोग जान करके बढ़ा रहे हैं. लेकिन आप रामचरितमानस जाकर पढ़िए तो आप उसमें देखेंगे कि ये जो दो पंक्तियां हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये रामचंद्र जी बोलते ही नहीं हैं. बिल्कुल. ना ही तुलसीदास जी अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं. ये शब्द समुद्र बोलता है. जब समुद्र की तरफ राम अग्निबाण का संधान करते हैं कि अब बहुत समय हो गया, विनय करते हुए, विनती करते हुए, तो रास्ता नहीं मिल रहा है, तो अग्निबाण का संधान करते हैं कि मैं इसको सुखा डालूंगा. तब समुद्र आकर के कहता है कि हे प्रभु, मैं तो मतलब ताड़ना का अधिकारी हूं. इस संदर्भ में समुद्र बोल रहा है. समुद्र रामचरितमानस का हीरो नहीं है. करेक्ट. समुद्र रामचरितमानस का लेखक भी नहीं है. तो कोई पुस्तक है, ग्रंथ है, उपन्यास है, कुछ भी, उसके अंदर जो हीरो है या उसका जो लेखक होता है,
उसके विचार, जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसके विचार को कहा जाता है कि भाई ये पुस्तक इस विचार को आगे बढ़ाती है, ये ग्रंथ इस विचार को, इस विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाता है। समुद्र तो इसमें ना तो प्रोटैगनिस्ट है, ना हीरो हैं, ना उसके लेखक हैं, वो अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। उसमें रावण भी बहुत आकर के विचार व्यक्त करता है, स्त्रियां कैसी होती हैं इत्यादि इत्यादि। तो क्या हम रावण के विचार स्त्रियों के बारे में जो उसने रावण कहता है उनको बोलें कि ये रामचरितमानस या तुलसीदास ये वाले विचार आगे प्रस्तुत कर रहे हैं? तो ये तो तर्क संगत नहीं होगा जी। लेकिन वो राजनीति की विडंबना है तो वो ऐसा करते हैं। दूसरी चीज, एक संदर्भ भी बात होती है जी। तो संदर्भ की एक बात मैंने बताई। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि कबीर दास जी का एक मैं आपको दोहा बताऊंगा, पंक्तियां बताऊंगा। अब कबीर दास जी एक, अब अगेन अगर हम कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दें तो क्या अर्थ निकलता है? वो बोलते हैं, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी को संग। कि नारी की छाया पड़ते ही सांप तक अंधा हो जाता है, तो जो हमेशा नारी के साथ रहता है उसकी कितनी दुर्गति होगी जी। अब इसको आप बिना संदर्भ के समझें तो आप एक नया बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन तुलसीदास जी की विडंबना ये है, क्योंकि वो नैरेटिव बन गया है, एक ब्राह्मणिकल शब्द आ गया है और उसके अंदर और ब्राह्मणिकल के साथ अब तुलसीदास जी का वो जाति भी देखी जाती है। हर व्यक्ति की आजकल कोई भी विचार को एनालाइज करने के पहले, किसी भी व्यक्ति के विचार के विश्लेषण करने के पहले पूरा उसका जीवन चरित्र देखा जाता है, उसकी जाति देखी जाती है, क्योंकि वो अब आजकल के पॉलिटिकल कैलकुलेशंस किए जाते होंगे कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो इससे ये फायदा होगा, या हानि होगी या लाभ होगी। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है। उस संदर्भ में इसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, जो नहीं बदलता वो स्वधर्म है, ऐसा कहा जाता है कि जो नहीं बदलता वो स्वधर्म है, यानी कि जो आपका इनहेरेंट नेचर है, जो नहीं जाती वो आपका कर्म है। तो दैट यूज्ड टू बी द अर्लियर टीचिंग। आज ऐसा हो गया कि जो नहीं जाती वो जाती है, क्योंकि जहां भी देखो ये जाति को घुसा देते हैं, जबकि जाति थी नहीं। इंटरेस्टिंगली इसके पहले के जो दो दोहे हैं, जो पंक्तियां हैं, उसमें कॉन्टेक्स्ट बैठता है। कॉन्टेक्स्ट ये बैठता है कि समुद्र भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर ये कह रहा है कि आपने मुझे सबक सिखाया, क्योंकि आपने मेरी इंट्रिंसिक नेचर को चैलेंज किया है, और आप प्रभु हैं, आप ही डिसाइड करते हैं कि हर किसी का स्वधर्म क्या है। और इसके बाद वो तर्क भी देता है समुद्र कि अगर मैं पूरी तरह सूख जाऊंगा और आप मुझे सुखा देंगे तो ये मेरे खुद स्वधर्म के विपरीत है, और जो आपने नियम सेट किए हैं प्रकृति के उसके भी विपरीत है। सो दैट्स व्हाट ही इज एक्चुअली सेइंग। तो हाउ शुड दिस बी सेटल्ड? शुड सच पीपल बी अलाउड स्पेस, और आर दीज पीपल प्लेस पीपल हु आर लूजिंग ग्राउंड? मेरा आखिरी प्रश्न है, क्या ये ऐसे लोग हैं जिनका अभी कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस नहीं है, तो इसीलिए कोई ना कोई बखेड़ा उखाड़ रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं उठा रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जब रामचरितमानस की इस दोहे को उठाया गया है। तो जो इस कास्टिस्ट नैरेटिव को खेल रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, व्हाट इज योर मैसेज टू देम? व्हाट शुड बी डन? आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये झगड़ा जो है ये कोई आज का बात, जैसे आप बता रहे हैं, आज का नहीं है। ये अंग्रेजों के जमाने से इस प्रकार का नैरेटिव चलता आ रहा है। अगर आप कॉल्डवेल के किताबें मतलब लेख देखिए या बहुत सारे नैरेटिव्स देखिए, तो एक विशेष दिशा में नैरेटिव को ले जाया जा रहा है, खेलने की कोशिश की जाती है। और इसका सबसे बड़ा तोड़ है कि लोगों को समझना होगा, और जो लोग जानते हैं उनकी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी होगी। और इस संदर्भ में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी, कि तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय के साधु थे, भक्त थे। अभी रामानंद कौन थे? रामानंद वैष्णव संप्रदाय के थे जी। लोग कहते हैं कि दक्षिण से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, और फिर यहाँ पर उन्होंने उनके जो प्रमुख शिष्य थे जी, वो अनेक शिष्य थे, सुरसुरानंद, अनंतानंद इत्यादि इत्यादि। उसमें एक शिष्य थे कबीर, चुलाहे का पुत्र। एक थे भगत पीपा, वो राजपूत व्यक्ति थे। एक रविदास जी थे जो चर्मकार ग्रुप से थे। एक धन्ना जाट था, और ये सब महान संत थे। मतलब इनकी तो यहाँ पर जाति वर्ण की बात ही नहीं, जाति की बात ही नहीं आती यहाँ तो। आप जाति की बात नहीं। तो ये तुलसीदास जी उस परंपरा से आ रहे हैं, उस परंपरा से आ रहे हैं जिसने जातिवादी का झगड़ा जो है, जिसने जाति को कभी देखा ही नहीं। नचिकेता जी, आई हैव टू मूव ऑन, यानी पर्सपेक्टिव तो आ गया, कॉन्सेप्ट भी आ गया। वी विल कंटिन्यू टू टॉक अबाउट दिस एट लेंथ। आई हैव टू मूव ऑन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बिग न्यूज कमिंग थ्रू फ्रॉम पटना, लेडीज एंड जेंटलमैन।